لبيك ألتمس الغفران فاغفر لعبد تاب إليك. لبيك يا ربي، لبيك يا الله، لبيك يا الله. الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سورہ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا جانے والا پہلا گھر مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے حج جیسے اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ حج کی فرضیت قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ انتہائی اہم رکن ہے اسلام کا۔ حج نہ کرنا تو گناہ ہے اور فسق ہے فرض ہونے کے باوجود، لیکن اس کا انکار کرنا، اگر کوئی شخص کہ میں حج ہی کو نہیں مانتا، حج فرض ہی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسا کہنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت سے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج لازم ہے، ان لوگوں کے ذمے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت بھی رکھتے ہوں، تو ان کے ذمے حج فرض ہے۔ تو فرضیت اس آیت سے بھی ثابت ہوگی، اس کے علاوہ روایات سے بھی ثابت ہے۔ اب انکار کرنے والا گویا قرآن کی آیت کا اور روایات کا انکار کرنے والا ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حج وہ عبادت ہے کہ جس میں پوری احتیاط اور پوری کوشش کرنی چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اور پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ باقی جو عبادتیں ہیں اس میں اگر کمی بیشی بھی رہ جاتی ہے، باقی جو عبادتیں ہیں تو اس کا پھر بھی چلو، نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، دوبارہ پڑھیں گے تو اس کی کسی نہ کسی درجے میں تلافی ہو سکتی ہے، لیکن حج تو ایک ہی دفعہ فرض ہے، تو اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری اخلاص کے ساتھ حج ہو، کیونکہ ایک مرتبہ جب حج ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو دوسرا حج فرض ہے نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلی دفعہ جو حج ہو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، اور پورے اخلاص کے ساتھ ہو، کیونکہ اخلاص کے ساتھ جو حج کیا جاتا ہے، حدیث میں آ گیا اخلاص کے ساتھ حج ہو اور اس میں گناہ کوئی نہ ہو، اس کی جزا جنت کے علاوہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة والنعمة لک والملک لك والملك لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة والنعمة لک والملک لك والملك لا شریک لک۔ حرم کا مطلب ہے عبادت گاہ۔ یہ عبادت گاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے۔ یہ عالی شان مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور عبادت کا سب سے بڑا مرکز بن گئی ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں مسلمان خدائے واحد کے گھر کی زیارت کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اور فریضہ حج سر انجام دیتے ہیں۔ حج نام ہے افعال مخصوصہ کا، وہ افعال مخصوصہ اگر آپ نے کر لیے، وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی چلے گئے، طواف زیارت بھی ہو گئے، سارے ارکان اور افعال حج کے اگر ادا کر لیے، حج تو ہو گیا۔ حج تو ان افعال کی ادائیگی کا نام ہے، لیکن اگر اس کے اوپر
हराम रकम लगी हुई थी तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, गो उसकी अदायगी हो गई। इसलिए इतनी फजीलत वाली चीज़, इतनी बरकत वाली चीज़ ये अगर करनी है तो इसके लिए कोशिश कर ली जाए कि ये हलाल पैसों से की जाए। और एक और चीज़ आपके सामने भी अर्ज़ कर दूं कि कुछ इबादतें ऐसी हैं जो आशिकाना हैं और कुछ इबादतें ऐसी हैं जो आक़िलाना है। तो हज उन इबादात में से है जो आशिकाना है। वो कैसे कि देखो, जब वो आप तवाफ़ कर रहे होते किसी वक्त हुक्म होता है दौड़ लगाना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, और जब कहा आहिस्ता चलना शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाना शुरू कर दिया आके। और कहीं कहा पत्थर को पत्थर मारना शुरू कर दो, आपने पत्थर को पत्थर मारना शुरू कर दिए। जैसे आशिक नहीं होता, कभी पत्थर मारना शुरू कर दिए, कभी दौड़ना शुरू कर दिए, कभी आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। तो हज भी आशिकाना इबादत है, आक़िलाना इबादत नहीं है। जैसे आशिक कभी दौड़ लगाता है, कभी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है, कभी पत्थर मारना शुरू कर देता है, पत्थर को पत्थर मारना शुरू कर दिए। इसके भी अफ़ाल वैसे ही हैं। हमने क्या करना है, रमी जो करनी है उसमें क्या है, पत्थर मारना शुरू कर दो, पत्थर को पत्थर मारना शुरू कर दो। कोई पूछे ये क्या इबादत हो गई? कभी दौड़ लगाना शुरू कर दो और कभी आहिस्ता चलना शुरू कर दो, कभी मरवा की तरफ आ जाओ, कभी मरवा से सफा की तरफ चलना। ये चलने का नाम इबादत हो गया, मुज़दलिफ़ा के अंदर ठहरने का नाम इबादत हो गया, पत्थर मारने का नाम इबादत हो गया, दौड़ने का नाम इबादत हो गया। ये आशिकाना इबादत है, आक़िलाना इबादत नहीं है। तो समझ में आए या ना आए, इससे अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया, मोमिन का असल काम यही है कि मेरे हुक्म के ऊपर अमल करे, चाहे उसकी अकल में आए या ना आए। अब ये सवाल हो सकता है ना कि ये दौड़ना कैसे इबादत बन गया, चलना कैसे इबादत बन गया, पत्थर को पत्थर मारना कैसे इबादत बन गया? ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, वह मेरे अल्लाह ने कह दिया, मेरी अकल में आए या ना आए, बस मैंने आंखें बंद करके उसके ऊपर अमल करना है, और यही इबादत है। और ये सबक दे दिया मोमिन को कि तुम्हारी समझ में आए या ना आए, तुमने अमल करना है उसके ऊपर। और वैसे भी हमारी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमतें और मसलहतें अहकाम के अंदर लामहदूद है और हमारी अकल महदूद और छोटी सी है। तो छोटी सी अकल के अंदर कैसे अल्लाह ताला की लामहदूद हिकमतें हो सकती हैं? कुर्बानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म हुआ था ज़िबा करने का, उन्होंने ये सवाल नहीं किया था बेटे का क्या कसूर, भाई उसने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया कि मैं उसके ऊपर छुरी चला दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सवाल नहीं किया था, इशारा कर दिया मोमिन का काम यही है, जब पता चल जाए ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, बस आंखें बंद करके उसके ऊपर अमल करें, उसमें चूं चुरा ना करें, उसमें हिकमतें या मसले क्यों, क्या हिकमत, क्या इल्लत है, क्या वजह है, और पूछते भी इस तरीके से कि अगर वजह समझ में आएगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। इस हज के अंदर अल्लाह ताला ने यह सबक दे दिया हमें कि समझ में आए या ना आए, मोमिन का काम यही है, आंखें बंद करके उसके ऊपर अमल करना, जब ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उस घर तक पहुंचने की इस्तात रखता हो वो उसका हज करे। हज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको किसी रुकावट ने हज से ना रोका हो फिर भी वो हज ना करे, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। और जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए उसको उसी साल हज करना ज़रूरी है, बिला वजह उसमें ताख़ीर करना गुनाह है। लिहाजा जब हज फ़र्ज़ हो जाए उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, उसी साल हज कर लेना चाहिए। और एक दूसरी रिवायत में आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्रे को भी हज के साथ मिलाकर किया करो, इसलिए कि उम्रे को हज के साथ मिलाकर करना फ़क्र और गुनाहों को ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी में अगर लोहा या सोना वगैरह डाल दिया जाए वो उससे जंग और मैल को दूर करता है। इसी तरह उम्रे और हज को मिलाकर करना फ़क्र और गुनाहों को भी दूर कर देता है। और एक और रिवायत में आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रोज़ हज किया जाता है 9वीं ज़िलहज्जा,
उस दिन शैतान अपने आप को इतना जलील, इतना हकीर समझता है कि इतना किसी और दिन उसने नहीं समझा सवाए जंग बदर के। वो क्यों समझता है? वो इस वजह से समझता है, जब वो अल्लाह ताला की रहमत को बरसता हुआ देखता है और अल्लाह के गुनाहों को बख्शता हुआ देखता है कि अल्लाह कैसे गुनाहों को बख्श रहे हैं, तो वो इतना हकीर अपने आप को समझता है, इतना जलील अपने आप को समझता है कि इतना किसी और दिन नहीं समझता सवाए जंग बदर के। और दूसरा मैंने वईद भी बता दी, हज फ़र्ज़ हो जाए और हज ना करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी सामने रखें कि जब हज करने के लिए जाएं तो ज़ियारत मदीना, रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी जाएं, क्योंकि ये भी हदीसी में आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी सिफारिश लाजिम हो गई। तो इसलिए यहाँ जाएं तो फिर वहाँ के लिए भी वक़्त निकालें। लेकिन हमारे यहाँ जो गलती होती है वो इस चीज़ में होती है, लोगों को पता ही नहीं है कि हज हमारे ऊपर कब फ़र्ज़ होता है। लबैक ला शरीक लक लबैक। हज वो दीनी फ़र्ज़ है जो इस्लाम के दिल से कम नहीं। हज की अहमियत तो अक़ीदत कभी कम नहीं हुई। हज पर मुसलमान के अक़ीदे का इम्तिहान होता है और इसीलिए ये सदियों से जारी है, बल्कि इसकी शान में लगातार इजाफा हो रहा है। लक वल मुल्क ला शरीक लक। किसी के पास